روز منفرد اور نئے کلام سننے کے لیے ابھی ہمارا چینل قادری اسٹوڈیو پتوں کی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حمد و ثنا کے بعد میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچ کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتوں کی شہر میں گزشتہ برس حاضری ہوئی تھی اور یہ دوسری حاضری ہے، اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ سوچتا ہوں میں ادھر بیٹھ کے حضور کا ذکر کروں اور آپ ادھر بیٹھ کے حضور کا ذکر سنیں، میں اور آپ حضور کی محفل کی حاضریاں اپنی زندگی میں کتنی دے لیں گے؟ جب ہم نہیں تھے حضور کی محفلیں تب بھی جاری تھی، اور جب ہم نہ ہوں گے میرے آقا کا ذکر پھر بھی ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ برکیف ہماری ایک مومن کی زندگی میں وہ لمحے اس کا سرمایہ حیات ہیں جو ذکر مصطفیٰ میں بسر ہوں، اور یقین کیجئے ہم نے قبر میں تو جانا ہے اور میدان حشر میں بھی جانا ہے۔ علماء اہل سنت جو آپ کو باتیں بتاتے ہیں کہ مومن کی حیات کا سرمایہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ باتیں آپ کو قبر و حشر میں یاد آئیں گی کہ علماء اہل سنت سچے تھے جو آپ کو کہتے تھے کہ حضور کی محفل سجایا کرو۔ الحمدللہ یہ شہر جو صوفیاء کے ماننے والوں کا شہر ہے، اور یاد رکھیے گا نبی کا سچا غلام جو ہوگا وہ صوفیاء کا بھی باادب ہوگا، یہ میرا ایمان ہے۔ اور آج داتا کی نگری سے ایک خاکسار آپ کے سامنے اپنے آقا کا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ دیکھیے قرآن کریم نے چند طرح سے لوگوں سے خطاب کیا ہے، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب جب پوری ہول مین کائنڈ، پوری انسانیت سے خطاب ہے تو بات اور ہوگی، اور جب اہل ایمان سے اللہ مخاطب ہوتا ہے تو بات اور ہوگی۔ یہاں یہ آیت کا آغاز یہ بتا رہا ہے کہ خالق کائنات پوری انسانیت سے مخاطب ہے۔ اللہ پوری
अव्वलीन व आखरीन, पूरी कायनात के कितने इंसान हैं, उनसे मुखातिब होकर कह रहा है या अय्युहन्नासो, ए लोगो सुनो, मुखातिब हो जाओ, तवज्जो करो। क्या? कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई है। थोड़ी देर के लिए जहनों को हाजिर कीजिए, आप पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, कि दलील कब दी जाती है? हमेशा दलील दावे की होती है। मौला तूने दावा क्या किया है? आइए कुरान से ही पूछते हैं। कुरान में अल्लाह ने दावा किया, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेशक मैं ही जहानों का पालने वाला वहदहु ला शरीक हूँ। तो अल्लाह ने दावा किया मैं वहदहु ला शरीक रब हूँ। तो अब दावा अल्लाह ने किया है तो दलील भी रब दे। और ये दुनिया का उसूल है कि जो दावा करता है दलील भी वही देता है। दावा जितना बड़ा होगा दलील भी उतनी बड़ी चाहिए, दावा जितना आला होगा दलील भी उतनी आला चाहिए, दावा जितना मजबूत होगा दलील भी उतनी मजबूत चाहिए। अब मुझे बताइए कि अल्लाह जहानों का रब है, इससे बड़ा दावा है कोई? इससे बड़ा दावा कोई नहीं है। तो अल्लाह ने बता दिया कि लोगों मैं रब हूं, कायनात का खालिक हूं, मालिक हूं, पालने वाला हूं। तो मेरी दलील मेरा मुस्तफ़ा है। कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तो मैंने जो दावा किया था उसकी दलील आ गई है। मालूम हुआ कि तौहीद की दलील आज़म ज़ाते मुस्तफ़ा है। और बुरहान कहते किसको? ज़रा इल्मी तौर पर एक दो बातें आपसे करके आगे चलता हूँ। इमाम रागिब फरमाते हैं अल बुरहानु औक़दुल अदिल्लती अदिल्लते वहुवल्लज़ी युक्तज़ा सिद्क़ु अबदा, कि बुरहान तमाम दलाइल में सबसे ज़्यादा पुख्ता दलील को कहते हैं जो हमेशा सच्चाई पर दलालत करती है। यानी बुरहान वो दलील होती है कि जिसमें कोई खोट हो सकता नहीं, वो ऐसी सच्ची दलील होती है कि उस दलील के होते हुए किसी और दलील की ज़रूरत नहीं रहती। और आगे देखिए इमाम खाजिन तफसीर खाजिन में फरमाते हैं कि अल बुरहानो दलीलुल अला इकामतिल हक़ व इब्तालिल बातिल, के बुरहान उस दलील को कहते हैं जो हक को कायम करती है और बातिल को मिटाती है। वन नबीयो काना कज़ालिक, और नबी की ज़ात ऐसे ही है कि आप हक को जाहिर करते हैं, हक को बयान करते हैं और बातिल को मिटाते हैं। और आप देखिए दावा जब बेमिसल है तो दलील भी तो बेमिसल होनी चाहिए। देखें कोई शख्स ये दावा करे अपने हवाले से, मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये गिलास है मिसाल के तौर पर। गिलास बनाने वाला कोई कहे कि जनाब ये मैंने गिलास बनाया है, ये बड़ा शानदार गिलास है, इस जैसा कोई गिलास आपको पूरे पत्तों की में नहीं मिलेगा, लाहौर पाकिस्तान क्या कायनात में नहीं मिलेगा। लेकिन कोई दूसरा बंदा उस जैसा गिलास या उससे बेहतर ले आए तो उसकी दलील रद्द हो जाएगी, उसकी दलील रद्द हो जाएगी, तो उसका दावा कमज़ोर हो गया। तो अल्लाह का दावा कमज़ोर तो है नहीं, अल्लाह का दावा तो ऐसा मजबूत और बुरहाने कातिया है कि अल्लाह ही वहदहु ला शरीक है और अल्लाह की दलील है मुस्तफ़ा। अगर दलील कमज़ोर होती है तो दावा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह का दावा बेमिसल है तो अल्लाह की दलील भी बेमिसल है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब का नाम रखा है मोहम्मद। क्या नाम रखा है? देखिए मोहम्मद का मानी है फल मोहम्मदो हुवल्लज़ी हुमीदा मर्रतन बाद मर्रतिन। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी, देखिए एक है मैं और आप, हमारी बुराई भी होती है तारीफ भी होती है। कायनात में एक ज़ात वाहिद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत और सना की है
जिनकी तारीफ ही तारीफ होती है। क्यों कि अगर कोई उनमें ऐब मानेगा तो वो उनको मोहम्मद नहीं मानता, जो हुजूर को मोहम्मद नहीं मानता उसका ईमान नाकिस है। तो जो हुजूर को मोहम्मद मानता है वो हुजूर को बेऐब मानता है। यही वजह है, मैं नहीं कहता, हस्सान बिन साबित हुजूर के सामने कहते थे, क्या खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया। तो हुजूर को अल्लाह ने बेमिसल और बेऐब बनाया है। और फिर देखिए, सिर्फ हुजूर का नाम मोहम्मद नहीं, हुजूर की जात भी मोहम्मद है। मोहम्मदियत के जलवे कभी मुस्तफ़ा की आंखों से नजर आते हैं, कभी हाथों से नजर आते हैं, कभी कानों से नजर आते हैं, कभी उनके अफकार से नजर आते हैं, कभी किरदार से नजर आते हैं। सारे नबी दुनिया में आए तो उन्होंने अपने नबी होने के लिए खारजी मोजज़े पेश किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनको अल्लाह ने असा दिया, असा पेश किया, असा फेंकते थे वो अस्तहा बन जाता, और दीगर जो जादूगर सांप फेंकते थे उनको वो निगल जाता था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हाथ अता किया, और जब मेरे और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए तो खारजी मौजज़ा नहीं, अपनी ज़ात को पेश किया है। कुफ़ारे मक्का के सामने हुजूर खड़े हुए और फरमाया, फ़कत लबिस्तु फ़ीकुम उम्रा मिन क़ब्ल, इससे पहले मैं तुम में अपनी उम्र का कुछ हिस्सा गुजार चुका हूँ। सारे नबी मौजज़े लेकर आए, मेरा नबी मौजज़ा बन के आया। बुरहान, देखिए लफ्ज़ मौजज़ा आप सुनते हैं ना, मौजज़ा का लफ्ज़ कुरान और हदीस में बयान नहीं हुआ। ये अहले इल्म ने, फ़िलासफ़र्स ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लोगों की सहूलत के लिए इस इस्तिलाह को बयान किया है। मौजज़े का जो पैरेलल यानी मुतरादफ़ जो पेश किया जाता है कुरान में, वो बुरहान ही है। आयत या बुरहान याद रखिएगा। तो सारे नबी आयात, बय्यनात, बुरहान लेकर आए, यानी खारजी तौर पर कोई चीज़ पेश करते थे, और मेरे नबी खुद बुरहान बन के आए। और सुनिए, देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाते हैं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को सजदा किया, सर सजदे से उठाया और अर्श के पाए पर जो लिखा पाया, तो उसी नाम का वसीला पेश किया और कहा, या अल्लाह करीम, मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा के तसद्दुक़ से दुआ करता हूँ, मेरी इज्तिहादी ख़ता को बख्श दे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरे आदम सफ़ीउल्लाह, तुमने उनको कैसे पहचाना? उनको तो मैंने अभी पैदा ही नहीं किया। फरमाया, मेरे मौला, जब तूने मुझे पैदा किया, मैंने सजदे में सर रखा, सर को उठाया, अर्श पर देखा, तो तेरे नाम के साथ लिखा हुआ पाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जान लिया मेरे रब कि ये हस्ती तेरी महबूब है, जिसका नाम तेरे नाम के साथ आ रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे आदम सुन लो फिर, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरा अगर ये मुस्तफ़ा ना होता, मैं कायनात को ही पैदा ना करता, बल्कि कायनात तो एक तरफ रही, लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिया, अगर ये ना होता मैं रब होना ज़ाहिर ना करता। अगर मेरा ये हबीब ना होता, मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। रब कब से रब है, कोई बता सकता है? बताइए तो सही। वो अजली है, वो सत्तार था, गफ्फार था, जब्बार था, रहीम था, करीम था, किसी को पता नहीं था। रब के करीम होने का पता चला तो मुस्तफा के जरिए चला है, रब के रहीम होने का पता चला है तो हुजूर के जरिए पता चला है। हमें तो पता ही नहीं था कि रब किधर है। इसीलिए कभी आपने गौर किया, सूरह अखलास हम पढ़ते हैं,
जरा आगाज कीजिएगा सूरह इखलास का। कुल, रुकें, फरमाया महबूब तू कह दे, क्योंकि मेरे दावे की दलील तू है, तू कहेगा, तेरे कहने पर ये कहेंगे तो मैं इनकी तौहीद मान लूंगा। मालूम ये हुआ कि जो तौहीद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पेश की है वही पेश की जाएगी तो हम मानेंगे, और वही रब की बारगाह में मकबूल। पंजाब के एक बहुत बड़े सूफी वली कामिल शेर रब्बानी हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे हमने तो रब को देखा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो हुजूर को ही देखा है। जुबान एक है, कभी खुदा बोलता है कभी मुस्तफ़ा बोलता है, जुबान एक है। और बात ऐसे ही है। मुझे बताइए सहाबा कराम किसको देखकर खुदा पर ईमान लाए थे? कुरान तो अभी चंद आयात नाजिल हुई है। कौन सा मौजज़ा पेश किया था? हुजूर की ज़ात को देखकर ईमान ले आए थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली, हज़रत बिलाल, ये सारे सहाबा, अजमतों वाले सहाबा, बेमिसलो बेमिसाल नबी के बेमिसाल सहाबा और बेमिसाल अहले बैत, ये हुजूर को देखकर ईमान लाए थे, ये हुजूर को देखकर ईमान लाए थे। जहां मुझे ये आपके ज़ौक़ के लिए कहता चलूं, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द रशीद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई हसीनो जमील थे। उनको एक यहूदी मिला, यहूदी ने पूछा माँ इस्मुक, क्या नाम है आपका? तो आपने फरमाया मेरा नाम है मोहम्मद। तो उससे नाम सुनता गया और कलमा पढ़ता गया। दूसरे यहूदियों ने कहा अरे तूने दलील क्यों नहीं पूछी? कहने लगा मेरे दिल से आवाज आई उम्मती इतना हसीन है तो नबी कितना हसीन है। और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब पंजाबी के शायर, ये अपना तखल्लुस, आप जानते ना शोरा अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, ये अपना तखल्लुस यूज़ किया करते थे मोहम्मद। और मोहम्मद मोहम्मद इनको लोग बुलाते थे तो फरमाते थे मैं मोहम्मद ठग, मैं मोहम्मद चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद हो, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी। तो वो नबी कुरान की सूरत में मौजूद है, सूरह कहफ में ही, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुछ लोगों की नजर इधर गई तो वो नबी को अपने जैसा कह उठे। अरे बेवकूफो, ठीक है नबी के दो हाथ हैं, तुम्हारे भी दो हाथ हैं, नबी की दो आंखें हैं, तुम्हारी भी दो आंखें हैं, लेकिन उन हाथों में जो कमाल है वो कमाल के दर से लाओगे। वो हाथ, उस हाथ की क्या अजमत कि जिस हाथ को रब कहता है महबूब ये तेरा हाथ नहीं ये मेरा हाथ। हाथ पे, नबी के हाथ पे भी बात हो जाए ना, नबी को अपने जैसा कहने वाले, वो नबी जो रब की वहदाउ ला शरीकी पर, वहदाउ ला शरीक होने पर दलील बन के आया है, वो बेमिसलो बेमिसाल नबी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सहाय सित्ता की हदीस, उनके पास हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम आए ना जान लेने, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो रखिएगा, मारिया घसुन, चलो तुहाडी ज़बान च, टीवी वाली ज़बान नहीं मैं यूज़ करता, मारिया घसुन ते कड़ दिती अख। इज़राइल की किसकी आंख? ये कलीमुल्लाह के हाथों की कुव्वत है कि मुक्का मार कर इज़राइल की आंख बाहर निकल आई। इज़राइल अलैहिस्सलाम आगे से देते जवाब। इज़राइल को पता था आगे आम बंदा नहीं, अल्लाह का प्यारा नबी कलीमुल्लाह है। आंख हाथ में ली, रब की बारगाह में गए, मौला तेरे कलीम के पास गया हूं, उन्होंने ये हाल कर दिया मेरा। तमाम ज़ख़ीरा हदीस, शुरुआत और तफासीर कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोई बात की हो, मेरे कलीम तूने क्यों ऐसे किया। इज़राइल को ही कहा कि जाओ मेरे मूसा के पास, जैसे वो चाहते हैं वैसे करो। और कलीम की ये शान है कि अल्लाह उनकी इज्जतें सबके सामने बयान करता है। कलीमुल्लाह के हाथों की ये कुव्वत है तो हबीबुल्लाह के हाथों की कुव्वत क्या है। वो हाथ जब बदर का मैदान हो
या हुनैन का हो, कंकरियां फेंके मुस्तफा करीम, तो अल्लाह फरमाता है महबूब तूने कंकरियां नहीं फेंकी, मैंने कंकरियां फेंकी हैं। अरे ये हाथ सुलह हुदैबिया के मौके पर अपने गुलामों से बैत ले, तो अल्लाह फरमाता है महबूब ये तेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ। नबी को अपने जैसा कहने वाले। और अगली बात तो सुनिए, मोहम्मदियत के जलवे हाथों से भी नजर आते हैं। सुलह हुदैबिया के मौका पर ही 1400 के करीब सहाबा कराम मौजूद हैं, पानी नहीं मिला। आप लोगों से अक्सर सुनते होंगे अहले इल्म बैठे हुए, तो सहाबा ने अर्ज किया हुजूर पानी नहीं है। तवज्जो रखिएगा, हुजूर ने ये नहीं कहा पानी नहीं है तो जाओ रब को, ये नहीं कहा, क्योंकि सहाबा, अच्छा सहाबा भी अल्लाह की बारगाह में नहीं गए। मालूम हुआ सहाबा का ये अकीदा था कि हमारा रब की बारगाह में जाना और है, मुस्तफ़ा के हाथों का उठना और है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाती या रसूल अल्लाह इन्नी उरा इन्ना रब्बा का युसारे को फी हवा का, या रसूल अल्लाह मैं देखती हूँ आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है, इधर हाथ उठते हैं इधर दुआ कबूल हो जाती है। नबी पाक ने सहाबा से फरमाया कुछ है, एक साहबी लेकर आए पानी का प्याला जिसको कटोरा कहते हैं, तो नबी करीम ने दुआ नहीं की, अपना बेमिसल हाथ उस पानी के प्याले में रखा। सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए, और 1400 सहाबा ने पिया, वुजू किया, गुस्ल किया, सवारियों को पिलाया। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने फरमाया था ना कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। मुझे शेर पढ़ना नहीं आता, बड़े बड़े खूबसूरत खुश अलहान नात खां मौजूद हैं सिर्फ आपके ज़ौक़ के लिए, और इस खित्ते में इश्क़ रिसालत की शमा को फरोज़ा करने वाला आला हजरत। वो देखिए इमाम आशिक़ां, उनकी निगाह किधर किधर थी, फरमाते और ज़ाते मुस्तफ़ा तो एक तरफ है, हुजूर की तो उंगलियां भी फैज़ दे रही हैं। क्या फरमाते हैं, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो रहा है मेरी तबीयत ख़राब है, खांसी जुकाम लगा हुआ है, मेरे साथ पढ़ेंगे ज़ौक़ आएगा। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। हुजूर ने तो इतना जनाब, और सुलह हुदैबिया के बाद ये देखिए हाथों का कमाल दे, अभी हाथों की बेमिसलियत बयान कर रहे हैं, जो नबी को अपने जैसा कहते हैं वो गौर करें। खंदक खोदी जा रही है, और आप जानते हैं कि गज़वा अहज़ाब पूरी सीरत पढ़ के देखिए, सहाबा कराम और नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए बड़ा सख्त गज़वा था। गज़वा खोते खोते कई दिन हो गए, 2-3 दिन ना सहाबा ने कुछ खाया ना नबी पाक ने कुछ खाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने ये मंजर देखा तो अपने घर आए अपनी ज़ौजा के पास, कहने लगे अल्लाह की बंदी घर में कुछ है खाने पीने के लिए? उन्होंने कहा हाँ कोई 2-3 किलो कुछ आटे का सामान है, जौ या आटा जो भी कह लें, और एक छोटी सी बकरी है। तो हज़रत जाबिर कहने लगे अपनी ज़ौजा से क्या ही अच्छा हो कि हम अपने आका को और उनके चंद जानसार सहाबा को आज खाने पे बुला लें, हुजूर ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तो सहाबी की बीवी थी, हैं तो प्रोफेसर की बीवी होती तो कुछ और कह देती, सहाबी की बीवी थी ना, कहने लगी जाओ इससे बड़ी खुशबख्ती और क्या हो सकती है। हज़रत जाबिर आए और हुजूर के कान में सरगोशी नहीं जैसे होती, अर्ज करने लगे हुजूर आज आपका खाना जाबिर गरीब के घर है, हैं एक बारी आ जा तू साड़ी जात है, ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया था ना, हैं। और हज़रत अब्दुर्रहमान जाबी ने कहा था मने मिस्कीन नादारी, या रसूल अल्लाह एक बार देखिए उशाक कैसी कैसी बातें करते गए। तो इधर हजूर के कानों में हज़रत जाबिर ने कहा आका तशरीफ़ लाइए,
हुजूर ने ये सुनना था कि 1,500 से ऊपर, तकरीबन 1,500 के करीब सहाबा थे। पूरी खंदक में ऐलान कर दिया, ओ खंदक वालों, आज खाना जाबर के घर होगा। हते जाबर कहते हैं सरकार लजपाल हैं, हजूर ने इधर ऐलान किया, मैं घर नूं दौड़िया भी हजूर तो बादशाह हैं। घर गए, देखिए सहाबा का अकीदा देखो, सहाबिया का अकीदा भी देखो। बेगम कहने लगे भी अल्लाह की बंदी कुछ ना कुछ की होया मेरे नाल। चंद लोगों की दावत थी, मैंने हुजूर के कानों में कहा तो हुजूर ने तमाम अहले खंदक को दावत पे बुला लिया है। सहाबी की बीवी बड़ी समझदार थी, कहने लगी जाबर खाने की दावत तुमने दी या हुजूर ने दी है? जाबर कहने लगे हुजूर ने दी है। कहने लगी फिर टेंशन ना ले, जड़ी सरकार ने बुलाया है बंदोबस्त भी वो खुद करेंगे। और घर में खाना कितने लोगों का? 5 लोगों का। देखिए आपके घर फंक्शन होते हैं, आपने 200 बंदे का खाने का अरेंज किया और शादी हाल में बंदा आ जाए 600, क्या बनेगा? तो जाबर की भी यही कैफियत हुई है, जाबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और जब नबी करीम ने फरमाया जाबर जब तक मैं ना आऊं हंडिया का ढक्कन भी नहीं उठाना और रोटी भी कोई नहीं उठानी। हुजूर आए और अपने उन यदुल्लाह फौका ऐदिहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, वो बेमिसल हाथ अपने हाथों से हुजूर सहाबा को खाना खिलाते जा रहे हैं। सहाबा इकराम कहते हैं पूरे मजमे ने खाना खा लिया, खाना फिर भी वैसे का वैसे ही। ये हैं हुजूर के हाथ की बरकतें। और सुन लीजिए, नमाज पर मुसल्ला इमामत पर खड़े नमाज पढ़ा रहे हैं, तवज्जो रखिएगा, ये हदीस आपने अक्सर सुनी होगी, मैं इसमें से 1-2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। नमाज पढ़ाते पढ़ाते आका करीम ने 1-2 स्टेप आगे बढ़ाया और हाथ अपना आगे बढ़ाया, हाथ आगे किया फिर पीछे कर लिया और फिर नमाज पूरी की। नमाज ख़त्म हुई, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि आज नमाज पढ़ाते पढ़ाते आप कुछ आगे बढ़े और हाथ भी आगे बढ़ाया। अच्छा मेरा आप सबसे सवाल है पत्तों की वालों, आप नमाज पढ़ते हुए आपकी निगाह किधर होती है? बोलिए। सजदे वाली जगह पर। अच्छा जब सजदे वाली जगह पर होगी तो आपकी नज़र यूं होगी, यूं नहीं होगी, इमाम साहब की तरफ नहीं होगी। कभी किसी ने कहा कि नमाज में इमाम साहब आप खारिज कर रहे थे, ये थे आपका हाथ आगे बढ़ा, क्योंकि हुक्म यही है कि निगाह सजदे वाली जगह पर। सहाबा की निगाह किधर होती थी? नहीं समझे? किधर? अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अच्छा नबी करीम ने भी ये नहीं कहा कि मेरी तरफ क्या देखते हो, सजदे की जगह देखा करो। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा मेरे सामने जन्नत थी। वाह, खड़े किधर हैं? खड़े किधर हैं? मुसल्ला इमामत पर निगाह, सरे अर्श पर है तेरी नज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नज़र। यानी आला हजरत फरमाते हैं कि आप जिधर भी हो या रसूलल्लाह आपकी निगाहों से कोई चीज़ पोशीदा ही नहीं। कि जन्नत, हजूर ने फरमाया मेरे सामने जन्नत थी और उसमें फल लगे हुए थे, मैंने चाहा कि फल का एक खोशा तोड़ूं और तोड़कर तुम्हें दूं, तुम रहती दुनिया तक खाते रहो। फिर मैंने सोचा नहीं जन्नत में ही जाकर खाओ। मालूम ये हुआ कि हुजूर खड़े किधर हैं? मस्जिद नबी या खाना काबा में, निगाह जन्नत में है। वो नबी जो खड़ा मस्जिद नबी में हो या सहले काबा में हो, निगाह जन्नत में है। हमें अकीदा मिल गया कि वो नबी आज गुंबदे खतरा में हो लेकिन उसकी निगाह पत्तों की के गुलाबों पर भी मौजूद है। वो नबी जो मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर जन्नत के फल ला सकता है, वो नबी आज सब्ज़े गुंबद में रहकर हम गरीबों की बिगड़ी क्यों नहीं बना सकता। इसीलिए हम कहते हैं ना कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए
चरागा या रसूल अल्लाह। और आप देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतें, अल्लाह ने क्या क्या अज़मतें अता की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारे काबा तामीर किया, तो जब काबा तामीर कर लिया ना तो दुआ की, क्या रब्बना व बस फीहिम, या अल्लाह अब भेज उसको, अब भेज उसको। इब्राहीम को भी पता था मैं काबा बनाने वाला हूँ, बसाने वाला कोई और। इब्राहीम मेमारे काबा हैं, खलीलुल्लाह ने काबा बनाया है, हबीबुल्लाह ने बसाया। और आप देखिए यहाँ आपको सीरत का एक वाक़या सुना दूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवाओं पर थी। एक दफ़ा वो काबे के ऊपर से गुजर रहे थे तो अपनी सवारी को हुक्म दिया कि नीचे उतरो, हम काबे का तवाफ़ कर लें। तो नीचे देखा, आप जानते ना काबे में 360 बुत थे। तो जब उन्होंने देखा कि शिरक हो रहा है तो सवारी को हुक्म दिया कि वापस चलो, इधर तो शिरक हो रहा है, हमने तवाफ़ नहीं करना। ये देख कर काबा रोने लग पड़ा। तो अल्लाह ने पूछा काबे क्यों रोता है? तो काबे ने अर्ज़ किया मौला तेरा ये अज़मतों वाला नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी की अज़मत होती है, ये मेरा तवाफ़ करता मेरी इज़्ज़त बढ़ती। तो अल्लाह ने फरमाया काबे रो नहीं, हम अनकरीब ऐसी अज़मतों वाला हबीब भेजेंगे जो तेरे सहन में खड़े होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की वो सदाए दिल नवाज बुलंद करेगा कि कयामत तक तेरी अज़मतों के चर्चे होते रहे। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा जब मेरे शानों वाले बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत हुई तो काबा हमारे घर की तरफ झुक रहा था, तो कहने दीजिए कि काबा झूमा उसे बसाने वाला आ गया, सुन्नी झूमते हैं उन्हें जहन्नम से बचाने वाला आ गया। काबा भी झूमा है हुजूर की विलादत पर। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारे नबी हुजूर के चर्चे करते आए, सारे नबी तौहीद का डंका बजाते आए, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब कोई उनसे पूछता हजरत अल्लाह एक है, आप कहते हैं बताइए आपने अल्लाह को देखा भी है? तो वो दुआ करते थे मौला भेज दे उसको जिसने तुझे देखा, अब भेज दे उसको जिसने तुझे देखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अज़मतों वाले नबी, जलीलुल कदर नबी, जो हुजूर की उम्मती होने की दुआ करते रहे। मुहद्दिसीन ने, सीरत निगारों ने लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बदकार स्याकार शख्स था, गुनाहगार था, मर गया, लोगों ने बगैर जनाजा पढ़े उसको कूड़े में फेंक दिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की है, मेरे कलीम जाओ उस शख्स को पकड़ो उसको नहलाओ कफनाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मूसा अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट डायलिंग थी, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से डायरेक्ट डायलिंग थी। अल्लाह का नबी हो उसके राब्ते अल्लाह से होते हैं वही की सूरत में। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला ये तो बड़ा गुनाहगार स्याकार था। फरमाया जो भी था, स्याकार था, गुनाहगार था, इसियां शियार था, जब कभी तौरात खोलता मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम पढ़ता तो पढ़कर आंखों में लगाता था। मैंने इसकी स्याकारियों को नहीं देखा, अपने नबी की ताजीम को देखा, मैंने इसको बख्श दिया। अरे मूसा अलैहिस्सलाम का गुनाहगार उम्मती जब हमारे नबी की ताजीम करे वो बख्शा जाएगा। आप अपने आका की ताजीम में ये महफिल सजाए बैठे, खुदा की कसम हमारे पल्ले और कुछ नहीं लेकिन हुजूर की मोहब्बत, ताजीम और एहतराम है। इस वजह से हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमें बख्श देगा। आप देखिए नमाज उम्मुल इबादात है, कितनी जामे और शानदार इबादात है, अल्लाह के लिए है। कभी आपने नमाज में गौर किया कि नमाज इबादत होती है अल्लाह के लिए? नमाज पढ़ते पढ़ते आप एक वक्त आता है अत्तहियात में बैठकर कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुझ पर सलाम हो। जहन में सवाल पैदा होता है कि मौला करीम इबादत तो तेरी है, तो ये तेरे अपने नबी को सलाम क्यों भिजवा रहा है? तो
اگر غور کریں گے تو دل سے آواز آئے گی کہ اللہ کریم یہ بتا رہے ہیں کہ جو عبادت محبت مصطفیٰ کے بغیر ہوئی وہ عقارت جائے گی، عبادت قبول ہوگی وہ جو تعظیم مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی، جو محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر یہیں پر سٹاپ نہیں ہے، السلام علیکم ایھا النبی۔ ہم لوگ سب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، رکیے گا ایک منٹ، آل ابراہیم سے کون لوگ مراد ہیں؟ آل ابراہیم کون لوگ ہیں؟ ارے آل ابراہیم نبی کریم کے سارے آبا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کے آبا پر بھی سلام بھیج رہا ہے، نبی کی آل پر بھی سلام بھیج رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ یہ بتا رہا ہے نماز میں، محبوب تیری اصل کو بھی سلام، تیری نسل کو بھی سلام، تیرے آبا کو بھی سلام، تیری آل کو بھی سلام۔ اور جب تک آقا پر سلام نہ بھیجا جائے گا، آپ کی آل اور آبا پر درود و سلام کے نذرانے نہ پیش کیے جائیں گے، عبادت قبول ہوگی نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بیٹھے ہوتے، ان کو حکم دیتے، کم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز سے ہمیں سکون اور ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ایک بابا جی سے اللہ کے ولیوں کے صحبت اختیار کیا کریں، یہ بابے بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ ایک بابا جی سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب میں حرم کعبہ میں بیٹھوں تو کون سا وظیفہ پڑھوں، اور جب مسجد نبوی میں جاؤں تو کون سا وظیفہ پڑھوں؟ بابا جی نے بڑا دلچسپ جواب دیا، کیونکہ بابا ہی ہوتا ہے پھر۔ انہوں نے کہا کہ جب تم مسجد حرام میں ہو تو درود پاک پڑھو، اور جب تم مسجد نبوی میں ہو تو تم تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ کہنے لگا بابا جی یہ وظیفہ الٹ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ سین کعبہ میں تو تلاوت ہونی چاہیے، ذکر و اذکار ہونے چاہیے، اور مسجد نبوی میں درود ہونا چاہیے۔ کہنے لگا نا پتر وظیفہ الٹ نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ نبی پاک کو اللہ کا ذکر سننا پسند ہے اور اللہ کو مصطفیٰ کا ذکر سننا پسند ہے۔ جب تم کعبے میں ہو تو مصطفیٰ کا ذکر کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب مدینے میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو، مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے میرے آقا و مولا جب سفر گزرتا گیا، پوری کائنات حضور کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی سورہ صف وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور وہ میں فرماتے ہیں میں خوشخبری دیتا ہوں۔ خوشخبری، ہیپی نیوز اس کا ترجمہ ہے، گلیڈ ٹائڈنگز۔ خوشخبری کیا ہوتی؟ آپ کو کوئی بیٹھے بیٹھے ادھر کوئی کہے جناب آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے، آپ خوش ہو جائیں گے، چہرہ کھل اٹھے گا، سبحان اللہ۔ اور نبیوں، حضور تو نبیوں کے نبی ہیں، ان کا ذکر نبی کرتے تھے اپنی امتوں میں کہ دنیا والوں خوش ہو جاؤ کہ مصطفیٰ کی ذات آ رہی ہے، حبیب کی کردگار آ رہے ہیں، آمنہ کے لال آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، خاتم النبیین آ رہے ہیں۔ اور وہ مبشرن، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو خوشخبری سناتے تھے لوگوں میں، محلوں میں، گلیوں میں بیٹھ کر لوگوں سے حضور کا ذکر کرتے تھے کہ میرے امتیوں ٹھہر جاؤ، بس ادھر میں گیا اور ادھر وہ آمنہ کا لال آیا۔ تو دنیا حضور کا انتظار کر رہی تھی۔ اور دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی جب آمد کا وقت تھا، واہ جی واہ، اعلیٰ حضرت کیا کہہ اٹھے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی، بے مثل نبی، حضور کی اگر ذات بے مثل ہے تو حضور کے آبا بھی بے مثل ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز میں ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔
हुजूर के असहाब भी बेमिसल हैं कि अल्लाह ने उनके सर पर अपनी रजा का ताज सजाया है। हुजूर की अज़वाज भी बेमिसल हैं, हुजूर की आल भी बेमिसल है, क्योंकि हुजूर की अज़वाज और आल कुरान की सूरह अज़ाब में अल्लाह ने फरमाया आल और अज़वाज दोनों को अल्लाह ने पाक कर दिया। वो बदबख्त है, वो बातिल फिक्र वाला है जो असहाबे मुस्तफ़ा के खिलाफ बात करता है, जाले मुस्तफ़ा के खिलाफ बात करता है। गुलामान मुस्तफ़ा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि नबी के असहाब भी सच्चे हैं, नबी की आल भी सच्ची है, नबी के असहाब भी अजमतों वाले हैं, नबी की आल भी अजमतों वाली है। तो जब हुजूर की आमद हुई, 3 से 4 बड़ी जो सीरत की किताबें हैं, इब्ने हिशाम सबसे बड़ी सीरत की किताब, उसकी शरह है इमाम सुहेली ने की और रौजुल उनफ उन्होंने लिखा है। इब्ने सैयदुन नास ने लिखा है, सीरत हलबिया ने लिखा है कि शैतान, तवज्जो से नाम सुन लीजिएगा, शैतान 4 दफ़ा रोया है। कितनी दफ़ा? एक दफ़ा जब वो मलून हुआ, यानी लख दी लानत पई जदों, दूसरी दफ़ा जब बुलंदी से पस्ती की तरफ आया, और तीसरी दफ़ा जब हुजूर की विलादत हुई, और चौथी दफ़ा जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई। मालूम हुआ कि हुजूर की विलादत पर अफसोस करना, रोना, मातम करना, गम करना शैतान का काम है। शैतान ने तो रो कर अफसोस मनाया, और रहमान ने क्या किया? सीरत हलबिया ही देखिए कि जिस साल हुजूर की विलादत हुई, जितनी औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए, बेटे ही पैदा हुए, किसी के यहाँ लड़की पैदा नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी? उस दौर में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये इशारा था कि अब वो हस्ती आ रही है कि अब लड़कियों को जिंदा दफन नहीं किया जाएगा, औरतों को इज्जत देने वाला आ गया। और देखिए, रब ने बेटे बांटे, रब ने मुंडे वंडे हैं। सुन्नी लड्डू बांटता है, तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन जितनी मर्जी हो, सुन्नत इलाहिया है। रब अपनी शान के मुताबिक जश्न कर रहा है, सुन्नी अपनी शान के मुताबिक जश्न। और जब वो खास घड़ी आई ना, बल्कि उम्मुल मोमिनीन है, हुजूर की जो वालदा माजदा हैं, वो भी हमारी माँ हैं। मोमिनों की माँ है या नहीं है? वो बदरजा उला माँ हैं। और नबी की अज़वाज जब हमारी माँ हैं, तो जो नबी की माँ है, जरा 1 मिनट बात सुनिएगा मेरी तवज्जो से। बेटा चुप करें। आप सबकी माँ के कदमों तले क्या है? पक्की बात है, हदीस है। आपकी माँ के कदमों तले क्या है? यानी तुम्हारी माँ के कदमों तले है जन्नत। और जो नबी की माँ है, तो शर्म नहीं आती नबी की माँ के ईमान के बारे में बात करते हो? खुदा का खौफ करो। यानी तेरी माँ दे कदमा तले ते जन्नत, तो जो मालिक जन्नत की माँ है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ओ हुजूर जन्नत के मालिक हैं। अगर मैं कहूँ ना खुदा की कसम मालिक है, तो खुदा की कसम मालिक है। सही हदीस मौजूद है, जन्नती नौजवानों के सरदार कौन है? इमाम हसन हुसैन। जन्नती खवातीन की सरदार कौन है? और जन्नत के मालिक तो ये हैं। तुम्हारी माँ के कदमों तले जन्नत हमें कबूल है, तो जो मालिक हों जन्नत के, उनके कदमों तले। और फिर आप देखिए, अहदीस में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस शख्स से बेमिसल हाथ सलाम लेते थे, सारा दिन उसके हाथ से खुशबू आती थी। सारा दिन खुशबोमा ही खुशबोमा। अच्छा, सलाम आप जब किसी से लेते तो कितनी देर उसका हाथ आपके हाथ में रहता है? पूछ रहा हूँ। चलो 1 मिनट ला लो, बल्कि अभी तजुर्बा कर लेते हैं। बेटा सलाम ने क्या हाल है? मेरा ख्याल है चंद सेकंड। तो सारा दिन उसके हाथ से क्या होता था? तो जिस वजूद में मेरे आका 9 महीने रहे हैं, कमाल हो गई। जिस वजूद में
9 महीने मेरे हुजूर रहे। ओ हुजूर तो जिन राहों से गुजर जाते थे उन राहों से खुशबू आती थी। बल्कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम जब कभी हुजूर को मस्जिद में ना पाते, तलाश करना होता तो उन रास्तों पे चलते जिधर से हुजूर गुजरे होते थे, क्योंकि उन रास्तों से खुशबू आती थी। और जिन रास्तों से हुजूर गुजर जाएं वो खुशबूदार, जिससे सलाम ले लें वो खुशबूदार। तो जिस वजूद में 9 महीने रहे, यही वजह है कि हज़रत सईदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जूं जूं मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आ रहा था, जैसे आम ख़वातीन को तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था। और जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया तो खराजा मिन्नी नूर अदात लहू कसूर शाम, मुझसे एक नूर निकला जिसकी रोशनी में मैंने शाम के महल्लात देख लिए और हर तरफ नूर ही नूर हो गया। चरिंदो परिंद एक दूसरे को मुबारक देने लगे, हर तरफ धूम सल्ले अला हो गई, मुस्तफ़ा आ गए मुस्तफ़ा। हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे, रोशनी हो गई। वो हालात पढ़कर तो देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत सईदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इंतहाई इख्तिसार के साथ 2-3 बातें करके इजाज़त चाहूँगा। बड़ी गरीब खातून थी। जब मक्का मुकरमा आई, उस दौर का ये रवाज था कि लोग अपने बच्चों को खुली फ़िज़ाओं में भेज दिया करते थे। तो हज़रत हलीमा सादिया को कोई बच्चा दे नहीं रहा था कि ये खुद बड़ी गरीब खातून है, हमारे बच्चों को कहाँ से खिलाए पिलाएगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में लोग जब ये सुनते कि ये यतीम हैं तो कोई ले नहीं रहा था। असल बात ये थी, अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़ैसला हो चुका था कि हज़रत हलीमा सादिया की गुर्बत के दिन मुस्तफ़ा करीम की खिदमत के तसद्दुक़ में ख़त्म हो जाने थे। और हज़रत हलीमा सादिया जब हुजूर को लेकर चली तो पहले जो सवारी चल नहीं रही थी, अब वो सवारी रुक नहीं रही थी। हाँ, उनकी सहेलियां कहने लगी कि हलीमा क्या हो गया कि आते हुए तो तुमसे चला नहीं जा रहा था सवारी से, अब तुम्हारी रफ्तार देखने के काबिल है। कहने लगी मुझे नहीं मालूम, सब बरकतें इसी महजबी की हैं जिसको मैं अपनी गोद में लेकर आई हूँ। और हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मेरा बेटा एक सारी रात दूध की वजह से रोता रहता था, ना जानवरों में दूध आता था ना मेरे दूध आता था। जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए, मेरी बकरियों ने इतना दूध दिया, मेरे भी इतना दूध आया, मेरे बच्चे ने खूब शेर होकर दूध पिया और वो रात इतने सुकून से गुजारी। मेरे शौहर हारिस कहने लगे, हलीमा लगता है तुम किसी बड़े ही बाबरकत बच्चे को ले आई हो। और हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि उस बस्ती में एक धूम मच गई थी कि मैं जिस घर में हुजूर को लेकर जाती थी वो घर मुश्क की खुशबू से महक उठता था। कि जिस घर में लेकर जाती थी और जो कोई बच्चा या जानवर बीमार होता था, हुजूर का मासूम हाथ, करीम हाथ उस जानवर या इंसान पर लगाते, वो शिफा याब हो जाता था। और ये तो हुजूर का हाथ है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास हुजूर का जुब्बा था। नबी पाक के विसाल के बाद जब कोई मदीना में बीमार हो जाता, हज़रत अस्मा के पास आता तो वो जुब्बा धोकर उसका पानी निचोड़कर उस बीमार पर फेंकती तो वो बीमार शिफायाब हो। तुम नबी की बात करते हो, नबी का तो जुब्बा ही दाफिउल बला है, नबी का तो जुब्बा मुश्किल कुशा है, नबी की जात तो एक तरफ है। और आप मुझे बताइए, कोई लाख बार करोड़ बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे, दायरा इस्लाम में दाखिल होगा? नहीं होगा। मालूम हुआ कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए मोहम्मद कहना पड़ेगा। और फिर आप देखिए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम
जब नबी पाक को लेकर मेराज की रात आसमानों पर गए, दरवाजा खड़काया, हदीस में आता है, तो फरिश्ते ने अंदर से पूछा कौन? कहा जिब्रील। फरमाया तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे हुक्म है कि आसमानों के दरवाजे मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए खुलेंगे। मालूम हुआ कि आसमानों के दरवाजे भी खुलेंगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से सुनो। और कब्र में जाना है ना, कब्र में 3 सवाल। मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? अल्लाह रब्बी या रब्बी अल्लाह कह दिया जाए तो जन्नत की खिड़की क्यों नहीं खुल रही? कभी गौर किया? अगला सवाल माँ दीनों का, दीनी अल इस्लाम, अल इस्लाम दीनी, ये कह दिया जाए खिड़की फिर भी नहीं खुली, खिड़की नहीं खुली। हाजी साहब गौर करो, अल्लाह के देखिए, याद रखिएगा, नौजुबिल्ला हम नबी करीम अलैहिस्सलाम तमाम तर अपने कमालात के बावजूद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं आगे बात करता हूं, अल्लाह का नाम लिया है खिड़की जन्नत की नहीं खुली, इस्लाम का नाम लिया है खिड़की जन्नत की नहीं खुली। क्यों? अल्लाह अल्लाह करने वाले बड़े हैं, लेकिन अल्लाह को वही बंदा अल्लाह अल्लाह करने वाला मंजूर है जो अल्लाह अल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहे। महबूब जो मेरा जिक्र करे और तेरा जिक्र ना करे, ऐसे बंदे के लिए जन्नत की खिड़की नहीं खुलेगी। जन्नत की खिड़की खुलेगी किसके लिए? तीसरा सवाल, मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजल मोहम्मद, बता इस बद्दुहा के चेहरे वाले के बारे में तेरा अकीदा क्या? और अहले इल्म बैठे हैं, मा कुंता, कुंता फेल पास्ट है, माजी का सीगा है, बता दुनिया में क्या कहता था। अब दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो कहते हैं नबी हमारे जैसे, और एक वो हैं जो हसन बिन साबित की जुबान बोलते हैं। क्या? वह असन बिन कलम तरकत तो ऐली, कि हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। और कब्र में जब हुजूर की रिसालत की गवाही दे दी जाएगी तो फिर जन्नत की खिड़की भी खुल जाएगी। इसी तरह मैदान हशर में आइए, शफात का दरवाज़ा मालूम हो गया कि इस्लाम का दरवाज़ा खुलेगा तो नामे मुस्तफ़ा के तसद्दुक़ से, आसमानों के दरवाजे खुलेंगे तो नामे मुस्तफ़ा के तसद्दुक़ से, कब्र में जन्नत की खिड़की खुलेगी तो नामे मुस्तफ़ा के तसद्दुक़ से, आसमानों के दरवाजे खुलेंगे तो नामे मुस्तफ़ा के तसद्दुक़ से, शफात का दरवाज़ा खुलेगा तो हुजूर के नाम से, जन्नत मिलेगी तो हुजूर के नाम से। तो सब कुछ तो हुजूर की वजह से मिल रहा है, तो क्यों ना ऐसे नबी के गुण गाएं, क्यों ना ऐसे नबी की अजमत के गुण गाएं कि या रसूल अल्लाह हमारी तो सारी बहार आपसे है। और फिर यहाँ पर मैं एक और वाक़या अर्ज करता चलूँ, मदीना मुनव्वरा में जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, आप लोग पढ़ते रहते होंगे सीरत की किताबों में कि अहले मदीना कई दिनों से हुजूर का इंतज़ार कर रहे थे। ज़रा अपने नॉलेज को मेंटेन कर लीजिए, कई दिनों से नहीं, ओए अहले मदीना 1000 साल से हुजूर का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बता के दस के जाऊँगा इंशाअल्लाह, 1000 ईयर्स इंतज़ार कर रहे हैं। कुतुब सीरत पढ़िए, यमन का एक बादशाह तुब्बे हिमयरी या हुमैरी भी आपने पढ़ा होगा, वो मक्का मुकरमा आया, तवाफ़ किया, गिलाफ चढ़ाया, उसके लश्कर के साथ 400 पहली किताबों के उलमा मौजूद थे। जब उसका काफिला चला, चलते चलते महबूब की बस्ती में पहुंचा, मदीना मुनव्वरा पहुंचा, तो वहां कुछ देर ठहरे तो उन 400 उलमा ने, तौरात ज़बूर इंजील के उलमा ने वजीर से कहा, वजीर साहब अब बादशाह साहब को जाकर कह दे हमने इधर से जाना कोई नहीं, असी इत्थे ही रहना तो इत्थे ही मरना है। वजीर भी बड़ा अक्लमंद सा, को आजकल का वजीर नहीं ना था, हैं
आजदा वजीर तो और मिजाज हैं। वजीर कहने लगा नहीं मुझे भी बताओ वजह क्या है, मैं भी तुम्हारे साथ जीव मरूंगा। कहने लगे हमने अपनी किताबों में पढ़ा है वो आखिरी नबी, नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनकी खातिर कायनात बनी है, काबे को इज्जतें मिली हैं, ये आलम कौनो मकान मार्ज़े वजूद में आया है, ये बज़्म कायनात सजी हुई है, उस हस्ती की हिजरत गाह ये बस्ती है, तो हम यही रहेंगे, हमने नहीं जाना। अगले दिन बादशाह ने कहा चलो जी यमन को वापस तैयारी करो। वजीर ने कहा जी ना इन्होंने जाना है तो ना मैं जाना जी। बादशाह ने कहा मुझे पूरी बात बताओ। कहने लगे जी हमने अपनी किताबों में पढ़ा है और जितनी आज हुजूर की अजमतों के परचम शर्को गर्ब में लहरा रहे हैं, कायनात की वाहिद हस्ती मेरे आका की जात है कि विलादत से पहले भी ऐसे ही चर्चे थे, हुजूर की आमद से पहले इतने ही चर्चे थे, हर तरफ धूम थी कि मेरे नैना नू उड़ीका अज तेरियां ते कदों तू आवे सोने कि हुजूर आप कब तशरीफ लाएंगे। इंसानियत सिसक रही थी, गुलशने हस्ती सूना पड़ा था, हर तरफ खजा ही खजा थी, बहार आई तो मुस्तफा के तसद्दुक़ पे आई। इंसानियत को इज्जत मिली तो हुजूर की वजह से है, बच्चियों को रहमत मिली, औरतों को वकार मिला, बड़ों को इज्जत मिली, सबको जो कुछ भी मिला है हुजूर के आने से मिला। तो बादशाह कहने लगा मुझे कुछ बताओ कि क्यों नहीं आप लोग जा रहे। कहने लगे बादशाह सलामत आपने भी सुना है, उलमा से सुनते आ रहे हैं, तौरात ज़बूर इंजील के पहली किताबों के सारे लोग कहते आ रहे हैं कि नबी आखिर ज़मान ने सुल्तान कायनात ने आना है, इस कायनात के सबसे अफजल व आला हस्ती ने आना है, तो उस हस्ती की हिजरत गाह ये बस्ती है। तो उसने फिर क्या किया, उस बादशाह ने वहाँ 400 मकानात बनवाए और उन उलमा के लिए ज़र कसीर खर्च किया, पैसा दिया, माल दिया, घर दिए और एक खत लिखा हुजूर के नाम। सुनिए जरा, अरे जिन्होंने नहीं देखा वो भी दस्त बस्ता इल्तिजा कर रहे हैं और जिन्होंने देखा है वो भी इल्तिजा कर रहे हैं और हमने नहीं देखा हम भी इल्तिजा कर रहे हैं। पहले हो जाहिर वाले हो या आज वाले हो, पूरी कायनात देखती है तो मदीने की तरफ देखती है। इस औज तक ना जाएगी पस्ती शऊर की, बाला है हर ख्याल से हस्ती हुजूर की। तो बादशाह ने खत लिखा और कहने लगा उलमा तुम रहो, इज्जत से रहो, तुम्हारा यहाँ रहना बनता है, लेकिन मुझ गरीब का एक खत मेरे आका को दे देना। अगर तुम उनका जमाना पाओ तो तुम दे देना मेरा खत, और अगर तुम जमाना ना पाओ तो अपनी नस्ल को, फिर नस्ल दर नस्ल, जहां तक कि वो आमना का दुलारा, इस कायनात का मालिक सरवरे कौनैन तशरीफ ले आए, तो उनको मेरा ये खत दे देना। उस खत में क्या लिखा था, या मोहम्मद हो। उस बादशाह के सामने हुजूर नहीं है, ओए हुजूर उनके सामने नहीं है, फिर भी वो क्या कह रहा है, ऊंची तरह बोलो तो सही यार। या मोहम्मद हो, मालूम ये हुआ कि हुजूर से पहले जो लोग थे वो भी या मोहम्मद कहते थे, जो हुजूर को देख रहे थे वो भी या मोहम्मद कहते थे, हम नहीं देख रहे हम भी या मोहम्मद कहते हैं। मुझे वक्त का बड़ा लिहाज है, वरना यहां पर मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद अहले सुन्नत, जिंदाबाद अहले सुन्नत। आपका ज़ौक ये चाहता है कि मैं चंद मिनट और बोल लूँ, मुझे इजाज़त है जी, क्योंकि मैं आपका मेहमान हूँ और मेज़बान की इजाज़त के बगैर मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ये 1000 साल पहले बादशाह कह रहा है या मोहम्मद,
آج ہمیں یا محمد کا نعرہ لگانے پر ہمیں مشرک کہا جاتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ دیکھو سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ایک حوالہ آپ کو جہاں پر دینا ہے جو یاد رکھیے گا. کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر. حضرت ابوبکر صدیق عاشقوں کا امام، تاجدار حق و صداقت، ان کا دور ہے. یمامہ کا مقام، مسیلمہ کذاب کے خلاف میدان بپا ہے. صحابہ کا لشکر ایک طرف، ان بےایمانوں کا لشکر ایک طرف. صحابہ کے لشکر میں 700 صحابہ بدری صحابہ ہیں. اب ادھر سے جب نعرہ توحید بلند ہوتا اللہ اکبر، تو وہ جو مسیلمہ کذاب تھا ادھر سے بھی نعرہ بلند ہوتا نعرہ توحید اللہ اکبر. صحابہ نے جب یہ دیکھا تو حق و صداقت کے امام صدیق اکبر کی طرف خط روانہ کیا کہ اے خلیفہ رسول، اے امیر المومنین، ہم بھی نعرہ توحید کا لگاتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا ہم بھی بلند کرتے ہیں، اور ادھر سے بے ایمانوں کی طرف سے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. تو بتائیے ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہونا چاہیے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تم نعرہ لگاؤ نبی کا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، بلند آواز سے کہو یا محمدہ. اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمدہ، کہ اس دن مسلمانوں کی جو پہچان تھی وہ نعرہ رسالت نبی کا نعرہ تھا. معلوم یہ ہو گیا جو صدیقوں کے ساتھ ہیں، صدیق کا جو غلام ہے وہ مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا ہے، اور جو کذابوں کا ٹولہ ہے وہ اس نعرے سے روکتا ہے. جو نبی کے یاروں کا نعرہ تھا وہی اہل سنت کا نعرہ ہے. ہم نے یہ کوئی نعرہ گھڑا نہیں ہے، ہمیں یہ نعرہ صدیق اکبر دے کر گئے ہیں، ہمیں یہ نعرہ فاروق اعظم نے دیا ہے، یہ نعرہ عثمان غنی نے دیا ہے، یہ نعرہ حیدر کرار نے دیا ہے. اور خدا کی قسم صحابہ نے جو چیز دی ہے، ہم مٹ جائیں گے لیکن نبی کا نام مٹنے نہیں دیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کہ حضور آپ کے نام مٹانے والے خود مٹ گئے، آپ کی عظمتوں کے پھریرے تو عرش پر لہرا رہے ہیں. آقا آپ کی عظمتوں کے پھریرے تو عرش پر لہرا رہے ہیں، اور اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ ہاتھ کے جس کے دامن تمہارا نہیں. خود خدا کا ہے قرآن میں یہ فیصلہ، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. سونیا محبوبہ، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا ہے وہی میرا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار توحید کی صدا بلند کرو، لیکن میرے نبی کا نام نہیں لوگے، بے ایمان ہی رہو. تو قبر میں کھڑکی کھلے گی، دنیا میں ایمان ملا، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی، حشر میں شفاعت ملی، جنت کے دروازے کھلے، جو کچھ بھی ملے گا حضور کی وجہ سے. تو وہ بادشاہ 1000 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ یا محمدو انی امنت بکا وبکتابک الذی نزلہ اللہ علیک. یا مصطفیٰ، یا محمد، میں آپ پر ایمان لایا اور اس کتاب پر جو آپ پر اللہ نے نازل کی ہے. اگر میں آپ کا زمانہ پالوں تو میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا، اور یا رسول اللہ اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو فشفا لی یوم القیامہ، اے کریم آقا تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اور لاؤ بھائی مجھے میرے اس نیک بھائی کا خط دیا جائے. دیکھیے وہ نبی جو اپنے سے پہلے ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی نہیں بھولا، جو سامنے تھے ان کو بھی نہیں بھولا، تو ہم گناہگاروں کو کیسے بھولے گا؟ ہم گناہگاروں کو کیسے بھولے گا؟ اور دیکھیے یہ تو حضور سے پہلے وہ بادشاہ استغاثہ پیش کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، اور حضور کے سامنے حضرت سواد ابن قارب صحابی رسول وہ فرماتے ہیں وَكُلِّ شَفِيًّا
यौमन लाजू शफातिन, या रसूल अल्लाह, उस दिन जब कहीं किसी की कोई शफात करने वाला नहीं होगा, मेरे आका आप मेरी शफात कीजिएगा, क्योंकि सवाद इब्ने कारिब का आपके सिवा कोई नहीं, हुजूर कोई नहीं आपके सिवा हमारा। और ये तो एक वो है जो पहले शफात की भीख मांग रहा है, एक वो है जो सामने दरख्वास्त पेश कर रहा है, और एक वो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी। भूल गए इमाम शरफुद्दीन बुसीरी क्या कहते हैं? क्या हो वल हबीबुल लिकुल्ले हौलिम मिनल अवाले मुक्तहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। बात समझ आ गई? जो पहले थे वो भी दस्त बस्ता हैं, जो सामने थे वो भी झोली फैलाए, जो बाद में थे। और ये 19वीं सदी के लबनान के एक बहुत बड़े सूफ़ी अल्लामा यूसुफ नबहानी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये आला हजरत के हम असर हुए हैं। सीरत पर बड़ी किताबें, मौजज़ात पर हुज्जतुल्लाह अल आलमीन फ़ी मौजज़ात सय्यदुल मुरसलीन, इनको किसी झूठे मुकदमे में कैद कर लिया गया और उन्हीं दिनों आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उधर थे। वो कहते हम मिले अल्लामा यूसुफ नबहानी से और उनसे कहा कि हमने वज़ीर को, उस्मानियों की हुकूमत थी उस वक्त, वज़ीर को ये कहा, वज़ीर से मिले हैं कि आपने बेगुनाह एक आशिक़ रसूल को पकड़ा हुआ है। तो उसने कहा अच्छा चले, मैं आप मुझे माफ़ीनामा लिख कर दें तो मैं सोचता हूँ। तो कुतुब मदीना जो आला हज़रत के खलीफा थे वो कहते कि हमने अल्लामा नबहानी से जेल में मिले और कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम कोई कार्रवाई करें और वज़ीर से, सुल्तान से दरख्वास्त करें। तो अल्लामा नबहानी कहने लगे सुल्तान वक्त से क्यों, सुल्तान कौनैन की बारगाह में जाकर अर्ज़ करो और ये कहो कल्लत हीलती अंता वसीलती अदरिकरी या रसूल अल्लाह, अदरिकरी या रसूल अल्लाह। आला हज़रत खलीफा कुतुब मदीना फरमाते हमने 3 दिन ये वजीफ़ा किया तो अल्लामा नबहानी की रिहाई के आर्डर आ गए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर अल्लाह की तौहीद पर दलील आज़म बन के आए हैं। हुजूर अल्लाह के महबूब आज़म भी हैं और दलील आज़म भी हैं। और याद रखना कि इसी दलील आज़म के साथ मिलकर इसी महबूब आज़म की ग़ुलामी का तौक गले में डालोगे तो फिर दुनिया में भी खैर है और आखिरत में भी खैर है। और अल्लाह करीम हम सबको हुजूर की कामिल इत्तबा और बिला मशरूत मोहब्बत अता फरमाए। याद रखिए हम लोग जो सूफिया की मोहब्बत के गुण गाते हैं, हम कभी दाता साहब का जिक्र करते हैं, कभी ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करते हैं, कभी बाबा फरीद का जिक्र करते हैं, कभी मियाँ शेर मोहम्मद शखपूरी रहमतुल्लाह अलैह, कभी करमाला शरीफ और अल्लाह के वलियों का जिक्र करते। वजह क्या है? ये वली, अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब हमको अपनी तरफ नहीं बुलाते, ये हमको मदीने की राह दिखाते हैं। और इन सब ने ही हमारे चेहरों का, हमारे कलूब का, हमारी अरवाह का जो निगाह का मरकज है वो मदीना को बना दिया। तो आज हम लोग हुजूर के साथ अपना जो ताल्लुक गुलामी है उसको दुरुस्त कीजिए, अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए, अपने किरदार को दुरुस्त कीजिए, अपने अखलाक को दुरुस्त कीजिए कि जिस मोहब्बत से ये महफिल सजाई है, मोहब्बत के ये रंग मंडी में, बाज़ारों में, खेती में, फैक्ट्रियों में और ऐवान इक़्तिदार में हर जगह आपकी ज़ात से नज़र आए, आपको देख के लोगों को पता चल जाए
کہ یہی نبی کا سچا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت اہل سنت پتوں کی کہ جذبوں کو سلامت با کرامت رکھے، اس مسجد کے منتظمین کو، بانیان کو ہر مقام پر عزت اور برکتیں عطا فرمائے، اس اہل محلہ کو جنہوں نے اتنی شاندار محفل سجانے میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ کریم ان سب کو حضور کی سچی پکی محبت، غلامی، پہچان اور شفاعت نصیب کرے۔